Hello and welcome to Nico Original News Stories. My name is Tarun Karthik and it's a Wednesday. Do remember to watch our bulletin every Monday, Wednesday and Saturday on Nico mobile app, on our YouTube channel and on our Facebook page. Apart from news, Nico is into food delivery business. Download the Nico app or call us on 844-844-0682 to order food from your favorite restaurants. Let's start with the coronavirus updates. Andaman and Nicobar Islands have reported 52 new COVID-19 cases in the last 24 hours. All the 52 cases are contact cases. There are 193 active cases of COVID-19 in the islands now. Altogether, Andaman and Nicobar Islands have witnessed 390 cases from the start, out of which 196 have recovered, with one COVID-19 related death being reported. Let's move on to the next story. The Chief Secretary of Andaman and Nicobar Islands, who is also the chairman of Union Territory Disaster Management Executive Committee, has ordered to take several additional steps to be taken to prevent the spread of COVID-19 in Andaman and Nicobar Islands. The steps ordered by the Chief Secretary includes complete lockdown in the islands on Saturdays and Sundays till the situation improves in the islands. All offices of Government of India, Union Territory Administration, local bodies, shops and commercial establishments, private establishments, industrial establishments, transport services, hospitality services shall also remain closed during the lockdown. All mainland and inter-island passengers shall be quarantined for 7 days from the date of entry into the island or the district until they are tested negative. Those who are not residents of Port Blair or Farragut Tehsil will also have to pay for their institutional quarantine themselves. The passenger who are asymptomatic and does not fall under various filters and relaxations as allowed by the administration will now have to pay Rs 2,200 per head to get tested for COVID-19 if they wish to get tested voluntarily. Passengers arriving at the airport from mainland and are destined to travel to tribal areas will be tested by RT-PCR test, and other passengers will be tested with antigen test. Nodal officer of COVID-19 will take random samples for testing daily from crowded places such as vegetable and fish markets. No convoy will pass through Jarwa Tribal Reserve area. Let's move on to the next story. Residents of North and Middle Andaman who had bought bus tickets for state transport buses to travel to their home district from Port Blair are now stuck in Port Blair due to the closure of Conway, which has closed down the roadways between the two districts. Some of these residents had come to Port Blair for treatment and some of them came here for some personal work, and now they have all nowhere to go since they have exhausted all their money and their relatives are refusing to take them into their homes because of the COVID-19 pandemic. Nico spoke to several of these sufferers. Let's hear their stories. मैम, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बाराटान। तो क्या प्रॉब्लम है अभी? आप यहाँ पे क्यों, क्या प्रॉब्लम चल रहा है आपको? अभी हम लोग को तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, एक नहीं है। अभी यहाँ हम लोग तो एक तो हमारे हाथ में पैसा नहीं है, रहने का जगह नहीं है, और टिकट तो ले लिए हम लोग। जैसे कि टिकट ले लिए बोले से ही हम लोग का अभी पैसा खत्म हुआ, बोले से हम लोग जाने का सारा हो गया। हम लोग जितना भी हम लोग को जो भी करना था वो हम लोग को खरीदारी करना था या जहाँ जाना था वो सब कर लिए। बस हम लोग को तो जाना है, टिकट तो निकाल लिए, बस पैसा भी खत्म। अभी एटीआर भी बंद। अभी हम लोग रहेंगे कहाँ में, क्या खाएंगे, कब जाएंगे, वही हम लोग को अभी। तो सुबह से मैम आपके साथ क्या क्या हुआ हमको बताइए। टिकट आपने कब खरीदा था और आपको कब पता चला कि ये कैंसिल हो गया, वो हमको बताइए। टिकट हम लोग 2 दिन पहले खरीदे थे, और साथ में हमारे साथ में जो हैं और भी वो लोग कल भी लिए हैं टिकट। और हम लोग जब गए तो अभी एटीआर बंद हो गया तो बोले, फिर हम लोग उस लोगों को बोले कि सर ऐसा कैसा होएगा, पहले भी आप लोग बताए नहीं। बोलने से हम लोग कोई भी ऑफिसर से हम लोग बात करना चाहते हैं, अपना तकलीफ जो भी है वो बताना चाहते हैं, तो वो लोग गुस्सा करते हैं हम लोग से। सही ढंग से बात करना चाहते भी नहीं है, हम लोग बताना भी नहीं चाहते हैं कि आगे क्या करना है, क्या होने वाला है। जब हम लोग पूछे कि कब तक रहेगा ऐसा, कब तक खुलेगा एटीआर रूट, कब तक बंद रहेगा, बोलने से भी वो लोग बोलते कि हम लोग को नहीं पता है। वही हम तो टिकट नहीं निकाली थी, लेकिन आज बात कर रही थी टिकट के लिए। ठीक है, हम तो ड्राइवर लोग से हम बात कर रही थी, हाँ टिकट मिल जाएगा, आ जाइए बोले। तो 6 बजे का अंदर में आ जाइए बोले। 6 बजे हम 5:30 बजे पहुंच गई। फिर टिकट के लिए बात करने से बोलते आज तो एटीआर रोड बंद है,
क्या करेगा टिकट। फिर अभी इधर रहने के लिए भी अभी ये कोरोना में तो किसी का घर भी रखने के लिए नहीं, मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो किराया में जो भी रखते हम लोग का रिश्तेदार, उन लोग को भी बोलते कि हम लोग का किराया रूम मालिक कोई मतलब अपना रिश्तेदार को नहीं रखो और रखने ही नहीं। इस तरह कोरोना में इस तरह बोले फिर अभी किधर जाएंगे हम लोग। अब रहने के लिए भी तो मांगते और हम लोग तो अभी पूरा मुश्किल हो गया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बाराटांग का रहने वाला हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पे क्यों रुके, क्या इशू क्या है आपको, पूरा इशू बताइए। क्या है मतलब सर, जो जैसे देखिए सर, जैसे कि हम लोग कुछ इंटीमेशन नहीं था कि जैसे सडनली लॉकडाउन हो गया, ठीक है, टिकट वगैरह सब इशू कर दिया है। उसके बाद 6-15 से पहले आ जाने बोले तो आ गए थे। जैसा 7 बजा सर उस टाइम बोल रहे हैं कि लॉकडाउन है करके, मतलब ATR बंद कर दिया गया है। तो हमारे यहाँ पर रहने का कोई सुविधा नहीं है। प्लस हमारे छोटे मोटे काम से आए थे सर बाराटांग से, यहाँ पर लॉज में रुके थे हम लोग 1 दिन के लिए, और लॉज वाला भी बोल रहे हैं कि ज़्यादा दिन रुकने नहीं देते हैं। और हमारा यहाँ तो कुछ पैसा वगैरह भी तो नहीं है सर, क्योंकि 1 दिन का ही किराया 1000 रुपया होता है। फिर खाने वगैरह का भी कुछ व्यवस्था नहीं था। सुबह से हम लोग यहीं पर है सर, बस स्टैंड में बैठे थे, सुबह से भूखा पैसा है सर। हम लोग बहुत, हम अकेला नहीं है, मेरा पीछे और 30 जन है सर, 30-40 जन है। कोई इधर उधर चले गए हैं, किसी हमारा तो कोई कुछ नहीं है सर यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे कुछ व्यवस्था मिले करके MB सर के वहाँ आए हैं, तो हमारा यहाँ पर कुछ तो व्यवस्था निकले करके यहाँ पर आए हैं सर हम लोग। तो अभी आप लोग क्या बोला है, आप लोग कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गए थे, पूछे थे कि कब तक क्या होगा आप लोगों के लिए, कुछ अरेंजमेंट होगा बोल के? सर यही बोल रहे हैं कि होगा बोल रहे हैं। कोई बोल रहे हैं DSS का जो बोट वगैरह बाराटांग के लिए डालेंगे बोल रहे हैं सर। अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर सडनली अगर डाल दिया तो सर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। 1 दिन के लिए डाल दिया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते सर, क्योंकि हम लोग को जाकर टिकट भी लेना होता है, क्योंकि 50% ही कर दिया सर बोट में। क्योंकि फिर उसके बाद अभी तो 30-40 जन से ज़्यादा ही यहाँ पर बाराटांग और कदमतला के लोग हैं। रंगत वाले तो आधा जन चले गए आज बोट पे, दिगलीपुर वाले भी आधा जन चले गए। कोई मेडिकल पेशेंट भी आया हुआ है सर, वहाँ से कदमतला से भी आया हुआ है, वो अब यहाँ पर नहीं है, कहीं गए हैं, ठीक है। उसके बाद कदमतला से रेफर केस आया है, तो उनको यहाँ से रिटर्न जाना है अपने घर, तो जाने की व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ पे, तो उनके लिए कुछ आप लोग कुछ करिएगा। Bharatiya Janata Party, Andaman and Nicobar Islands, today openly opposed the manner in which weekend lockdown and closure of the roadways between South Andaman and North and Middle Andaman district was done. The president of the party, Shri Ajay Bairagi, in a letter to the Director Shipping Services, expressed his displeasure and he assured that the matter will be taken up at the appropriate level. Further, the former state president of BJP, Mr. Vishal Jolly, in a tweet, today also opposed that the Andaman and Nicobar administration will charge money for institutional quarantine of passengers who are non-residents of Port Blair or Farragut Tehsil. Nico spoke to Dr. Gigi Trek, the spokesperson of BJP Andaman and Nicobar Islands. Let's listen to his comments. देखिए, हम लोग रेगुलरली जब से कोविड का लॉकडाउन सब चालू हुआ तब से रेगुलरली हम लोग ट्वीट कर रहे हैं, चिट्ठी भी भेज रहे हैं कि बीजेपी का क्या स्टैंड है। तो सबसे पहले तो जो कल इनका जो SOP जो रिलीज किया अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने, उससे पहले पेट्रोल पंप्स पे जो अफरा तफरी मचा हुआ था और हजारों लोग पेट्रोल कलेक्ट करने के लिए आके जमा हो रहे थे पेट्रोल पंप में, कि एक अफवाह फैला होता मार्केट में कि लॉकडाउन होने जा रहा है एंड फुल लॉकडाउन होने जा रहा है। तो उस समय भी हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग एक स्टेटमेंट जारी कीजिए कि ऐसा कोई फुल लॉकडाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोगों को क्लियर करना चाहिए। ये जो पैनिकिंग होता है इसी में लोग जमा होते हैं और वायरस फैलता है। दूसरी बात, जो SOP जो जारी किया उसमें कई पॉइंट्स में भारतीय जनता पार्टी को ऑब्जेक्शन है, जैसे कि पेड क्वारंटाइन के बारे में बात हुआ है। उस पे हमारे पूर्व अध्यक्ष ने भी ट्वीट किया है कि बीजेपी का स्टैंड क्या है कि हम लोग उसका विरोध करते हैं। जो कन्वॉय जो है ओवरनाइट कल शाम को क्या 8 बजे के करीब तो SOP बाहर आया कि
कॉन्वॉय को बंद कर दिया है। कोई भी चीज को बंद करना बहुत आसान है। बंद करने से पहले उसके जो इफेक्ट्स है उसके बारे में भी सोच विचार होना चाहिए था। पता नहीं इन एडमिनिस्ट्रेशन में इस बारे में सोच विचार किया कि नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस वक्त जिरकाटांग और मिडिल स्ट्रीट के बीच में 2 ट्रक लोडेड विद राशन खड़ा हुआ है। उस एक ट्रक खराब हो गया था, दोनों ट्रक एक ही मालिक का था, तो दोनों साथ जा रहे तो दोनों को वहां पे रोक दिया गया। आज जब मैकेनिक गया उसको ठीक करने के लिए, उनको अंदर जाने के लिए नहीं दिया गया। 2 फुल ट्रक लोडेड विद राशन अब जंगल के अंदर खड़ा है। ऐसे ही आप सोचिए कि जो लोग पोर्ट ब्लेयर आए हैं ट्रीटमेंट के लिए या डेथ वे या कोई भी सरकारी काम से भी जो लोग आए हैं उनको वापस जाना था, और कई ट्रक्स जो है राशन और बाकी सप्लाईज लेकर नॉर्थ मिडिल गया हुआ है। तो अब क्या हो गया कि ओवरनेट बंद करने के कारण वो सब ट्रक्स वहां पे स्टैंडर्ड हो गया, और वहां के कई ट्रक्स पोर्ट ब्लेयर आए मटेरियल लेने के लिए, वो यहाँ पे स्टैंडर्ड हो गया है। तो अब ये जो लोग हैं जिनकी संख्या हजारों में है, तो उनका क्या होगा इसके बारे में तो कोई भी क्लियर कट पॉलिसी डिसीजन नहीं हुआ है। और जो पैसेंजर्स जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, चलो उनको आप बोट से शिफ्ट कर देंगे। आपको हर आइलैंड में बोट्स लगाना होगा जिससे कि शिफ्ट हो जाए। अब उनको यहाँ पे रहना है, उनका खाना पीना, अब सोचकर देखिए कितने प्रॉब्लम्स है। कई लोग अपने खुद के व्हीकल लेकर आए, फंस गए। तो हमने कल ही हम लोगों ने ट्वीट किया था और रिक्वेस्ट किया था कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप कम से कम 2 दिन का समय दीजिए, ताकि लोग अपना जो वहां पे गए यहाँ वापस आ जाए, यहाँ जो वहां के यहाँ है वहां वापस चले जाए। और दूसरा, आप जब एक नेशनल हाईवे को क्लोज करता है जो नॉर्थ मिडिल का लाइफलाइन है, तो आप सोचकर देखिए कि वहां पे जो गैस जाना है, फ्यूल जाना है, पेट्रोल और जो फ्यूल जाना है यहाँ से, वो सब तो इसी मार्ग से होता है। और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऐसा कोई ऑयल टैंकर्स या छोटे वेसल है नहीं कि आप जो है वहां भी फ्यूल सप्लाई कर सके। गैस सिलेंडर्स है, राशन है, ये सब चीज को यहीं से जाना है। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, ब्रिजेस का काम चल रहा है। आपने ब्लॉक कर दिया है तो उनके भी मटेरियल सप्लाई रुक जाएगा। आप पैसेंजर के लिए रोकिए 2 दिन समय देकर, उसके बाद आप नोटिफाई कर दें कि 2 दिन बाद इस रूट में कोई भी पब्लिक मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन कार्गो को तो अलाउ करना चाहिए आपको। कार्गो यहाँ से जाएगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो चल रहा है, वो जब पूरा हिंदुस्तान में लॉकडाउन था तब भी बाहर के स्टेट्स में नेशनल हाईवे का काम चल रहा था, रेलवेज के काम चल रहे थे। तो आप सडन लॉकडाउन कर दे तो मुझे तो और हमारे पार्टी का भी ये स्टैंड है कि कम से कम समय देना चाहिए था, 1 दिन या 2 दिन जो भी है देना चाहिए था कि लोग सेटल हो जाए। दूसरा, कोरोना जो इस सबसे फैल रहा है, आप एडमिनिस्ट्रेशन का अगर ट्वीट्स देखेंगे उसमें क्लियर कट है कि कॉन्टैक्ट्स किनके कॉन्टैक्ट्स, उनके कॉन्टैक्ट जो मेनलैंड से पोर्ट ब्लेयर फ्लाइट में आया। शुरू से 25 मई को जब पहला फ्लाइट चालू हुआ था तब हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा था कि जो फ्लाइट्स में लोग आ रहे हैं उनको 100% स्क्रीनिंग करें, उनका कोविड टेस्ट हो और उनको क्वारंटाइन किया जाए ताकि यहाँ पे कोरोना फैले नहीं। अब क्या हुआ, कल का अगर आप देखें तो 50 के करीब लोग पॉजिटिव हो गए। तो वो कॉन्टैक्ट्स जो मेलेंट्स है, अगर हम लोगों ने सोर्स पे ही रोक दिया होता, जहां से आ रहा है सोर्स पे ही अगर हम लोग ब्लॉक कर दिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता हमको। चलो अब भी समय था, अब भी हम लोग वो चीज कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में तो एसओपी में कोई क्लियर कट ये नहीं है कि 100% लोगों का चेक होगा। 100% लोगों को चेक कीजिए ना, कितने लोग आते हैं आजकल मेलैंड से, उनको चेक कीजिए। अगर पॉजिटिव आता है तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट कीजिए, और जब तक जैसे आपके एसओपी में क्लियर है कि नेगेटिव आने पे आप क्वारंटाइन समाप्त हो जाता है। सेम चीज आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रख के उनका टेस्टिंग करा के
और अगर वो नेगेटिव होते हैं तो उनको छोड़ दीजिए, पॉजिटिव है तो उनका ट्रीटमेंट हो जाए, ताकि ये कॉन्टैक्ट्स वाला चीज बंद हो जाए। अब भी समय है कंट्रोल करने के लिए। अब डिले करेंगे तो वो फैलता रहेगा और फिर ऐसा भगवान ना करे कि ऐसा समय आए कि कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो हम लोग क्लियर कट आज भी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा रिक्वेस्ट है कि जो मेलेंट्स आ रहे हैं उनको 100% टेस्टिंग हो और उनको 100% इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन दैट ऑल्सो फ्री होना चाहिए। तो इसलिए ये हमारे पार्टी का स्टैंड है अभी। Nico also spoke to Mr. Udaya Kumar, the chairperson of Port Blair Municipal Council, and asked him about the current lockdown that is imposed on the weekends by the administration. Let's hear his comments. अभी कंटिन्यू आप देखते हैं 3-4 दिन का पहले से एक हफ्ता रिसेंटली कंटिन्यू केस पूरा बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हर एक दिन ऐसा लग गया 20, 25, 30 इस तरह। इसके रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो हम लोग स्टेप लेना पड़ेगा। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो भी अभी स्टेप लिया है, जो सैटरडे संडे लॉकडाउन का और जो भी एसओपी अभी बनाया है उसको हम पालन करके चलना चाहिए, क्योंकि हम पूरा रिस्क में हैं। पहले अपना आप को बचाना और सब परिवार को बचाने के लिए हम थोड़ा सा अननेसेसरी जो ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं वो सबको अवॉइड करना पड़ेगा और ऑलरेडी जो एसओपी बना हुआ है उसको भी पालन करना पड़ेगा। ये जो किया है वो उसका परिणाम तो आगे ही मालूम होगा। अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो फिर हम लोग बाद में जो है अप्रोच करेंगे। सर, नॉर्थ मिडिल में जैसे कन्वे अभी बंद हुआ है तो दिक्कत आ सकती है। जो एसेंशियल गुड्स है और पैसेंजर का ट्रैवल है उसके लिए बोला गया कि शिप्स वगैरह का फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। सर आपके हिसाब से क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? अल्टरनेटिव तो आप ही बोल दिए हैं, वो जो शिप वगैरह तो ज्यादा चलाने बोले हैं, उसमें से थोड़ा राहत मिलेगा। अभी तो ये फिलहाल थोड़ा कंट्रोल करने के लिए 1-2 दिन के लिए किए हैं, तो थोड़ा सा नॉर्मल स्थिति में आएगा तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। पहले भी उसी तरह हुआ था, फिर नॉर्मल में आ गया था तो कंट्रोल होने के बाद। अभी जो हिसाब से बढ़ रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना ही पड़ेगा सब जगह पे। That's all in today's news bulletin. Download the Nico app, subscribe to our YouTube channel, and follow our Facebook page to stay updated with the latest Andaman and Nicobar Island news stories. Thank you.